Good morning, students. Myself Digvijay Singh, Assistant Professor, English, GK Govani, Government College, Bhinmal. Today, we are discussing about the poem written by William Wordsworth. The world is too much with us. In this poem, the poet talks about the materialistic life and love for material by human being in his life. And William Wordsworth was a poet of nature, he was the poet of past, and he was a romantic poet. And in 1798, he was written the preface to lyrical ballads. And in this preface to lyrical ballads, the Wordsworth talks about the simplicity of the diction, simplicity of the words in the poetry, and the language of rustic peoples, simple peoples, and the language used for nature. And he's every time talks about the simplicity of the nature and that talks about the past. And he told that the nature and the man are not different entities, they are attached to each other. बच्चों, आज वर्ड्सवर्थ का द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस, जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड मीन्स द नेचुरल वर्ल्ड, और सेकेंडली मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ल्ड इन आवर लाइफ. वन इज़ द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड एंड सेकेंड वन इज़ द नेचुरल वर्ल्ड. लेकिन मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का मतलब है भौतिक संसाधन, संसार की चीज़ें, सामान, वस्तुएं जिनसे हमें अत्यधिक लगाव होता है, जिसके कारण हम उसी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं और नेचर की जो ब्यूटी है उसको हम नहीं देख पाते. इसी बात को लेकर पोइट अपने विचार इस छोटी सी पोएम में व्यक्त करना चाहता है. ये बीए फाइनल ईयर के सिलेबस की एक पोएम है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं. ठीक है, अब इस पोएम को देखते हैं बच्चों, आप ध्यान से देखना. द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस, लेट एंड सून मीन्स अर्ली एंड इन द past time and in early. Getting and spending, we lay waste our powers. Little we see in nature that is ours. We have given our hearts away, a sordid boon. This sea that bears her bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours, and are up gathered now like sleeping flowers. For this, for everything, we are out of tune. It moves on. For this, it moves on. Great God, it would rather be a pagan, suckled in a creed outworn. So might I, standing on this pleasant lay, having glimpses that would make me less forlorn, have sight of Proteus rising from the sea, and oh, hear old Triton blow his wreathed horn. And in this poem, the poet talks about the world is too much with us. World means materialistic world is too much with us. हम मटेरियल वर्ल्ड में जो भौतिक संसाधन है, सामान है, चीज़ें हैं, अपने हैं, पराए हैं, वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है. लेट और सून, बाद में और पहले, जल्दी, बाद में, सुबह, शाम, केवल हम संसार के बारे में सोचते हैं. गेटिंग एंड स्पेंडिंग, गेटिंग मीन्स अर्निंग एंड स्पेंडिंग मीन्स खर्च करना. गेटिंग मीन्स कमाना, कमाने और खर्च करने में ही हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है. वी ले वेस्ट अवर पावर्स एंड वी ले वेस्ट अवर पावर्स. और जो हमारी पावर्स हैं, जो हमारा परसेप्शन है, परसेप्शन मीन्स फाइव, परसेप्शन के लिए फाइव हमारे पास सेंसेस हैं, आइज़ है, ईयर है, nose, skin, all these are failed because of why we lay waste our powers in getting and spending means earning and spending. Let we see in nature that is ours. Little we see in nature, we little see the nature, the beauty of the nature, the moon, the sun and sky. हम उन सब चीज़ों को नहीं देखते, उस नेचर को नहीं देखते. that is ours, वो हमारी. means we are integrated with the nature and the man is not a different entity, they both are the combined one. We have given our hearts away, and we given our hearts away
वी गिव आवर हार्ट टू द मटेरियलिस्टिक थिंग, हमने भौतिक संसाधनों को अपना मन दे दिया। अ सॉलिड बोन, और सॉलिड बोन्स मीन्स अनप्लेजेंट गिफ्ट, और इसी ने हमें सॉलिड बोन मीन अनप्लेजेंट गिफ्ट, जो तोहफा हम चाहते नहीं थे वो तोहफा हमें दिया है। आज की तारीख में वर्ड्सवर्थ की बात, जो वर्तमान में पर्यावरण को हमने क्षति पहुंचाई है, जो हमने बहुत बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ मकान बनाने में, इनमें जो बहुत सा खर्च किया है, पत्थरों को तोड़ा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लगाने में कोशिश की है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में नज़र आती है। सॉलिड बोन मीन्स अनप्लेजेंट गिफ्ट, ये गिफ्ट हमें मिले हैं लेकिन अनप्लेजेंट गिफ्ट हैं, ये वो नेचर नहीं है। दिस सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, और उस समुद्र को देखो, उस सागर को देखो, दैट बेयर्स इज बॉसम, वो अपने सीने से अपने कलेजों को मून को लगा लेता है। मून की जो परछाई है वो किस में नज़र आती है? सी में नज़र आती है। द विंड्स दैट विल बी हॉवलिंग एट ऑल आवर्स, और जो विंड है वो हमेशा बहती रहती है, हॉवलिंग, उसकी एक आवाज़ सुनाई देती रहती है, लेकिन उस मटेरियलिस्टिक जीवन में जीने के कारण उस आवाज़ को हम सुन नहीं पाते। द विंड्स दैट विल बी हॉवलिंग एट ऑल आवर्स एंड आर अब गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, एंड आर अब गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, एंड दे ऑल गैदर्ड लाइक अ स्लीपिंग फ्लावर, जैसे नींद में झोंके लेते हुए फ्लावर्स होते हैं, उस तरह हवा के साथ साथ फ्लावर्स झोंके लेते रहते हैं और हवा चलती रहती है। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून, और फॉर दिस और फॉर एवरीथिंग मतलब फॉर दिस मतलब मीन्स फ्लावर के लिए, प्लांट्स के लिए हम लोग वहाँ पर नहीं हैं, और यहाँ तक वी आर आउट ऑफ ट्यून। आउट ऑफ ट्यून मीन्स वी आर नॉट मैच्ड विद द नेचर, हम नेचर से, हमारा कोई जुड़ाव नहीं है, हम नेचर से दूर हो चुके हैं। उस मटेरियलिस्टिक दौड़ में ऐसे भागे जा रहे हैं जिससे हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमें कहाँ जाना है, व्हाट इज़ आवर डेस्टिनेशन और व्हाट इज़ आवर मीन्स एंड व्हाट आर आवर एंड्स। हमें पता नहीं है हमारे साधन कौन से हैं, और हमें ये भी पता नहीं है कि हमें किस जगह पर, किस मुकाम तक हमें पहुंचना है। इट मूव्स अस नॉट, और वो हमें कहीं भी आगे नहीं बढ़ा रहे। ग्रेट गॉड आई वुड रेदर बी, और ग्रेट गॉड वो ईश्वर को याद करता है पोइट। ग्रेट वुड आई वुड रेदर बी मीन्स ही वॉज जस्ट इमेजिनिंग, ही वॉज जस्ट थिंकिंग, एंड ही वॉज impossibly thinking in his own mind, a pagan suckled in a creed outworn, और पैगन, वो एक पैगन बनना चाहता। पैगन मीन्स, पैगन आर दोज पीपल्स who pray the nature, the plants, the tree, plants, the moon, the sun. पैगन्स मतलब बहुदेवतावादी, जो हर प्राणी मात्र में, हर प्रकृति के अंदर भगवान को देखते हैं, वो पैगन कहलाते हैं। जैसे भारत में जैसे हम हिंदू धर्म को जो मानने वाले लोग हैं वो एक तरह से पैगन ही हैं, जो हर पेड़ पौधे पत्ती में, आदिवासी समाज के लोग जो होते हैं वो पैगन होते हैं, एक तरह से हर पेड़ पत्ती पत्थर में वो भगवान को मानते हैं। इन आउटवर्न, और ये जो पैगन है आउटवर्न मतलब ये ओल्ड डेटेड, ओल्ड फैशन एक धर्म हो चुका है, लेकिन पोइट चाहता है कि मैं उस धर्म को अपनाऊं, उस धर्म में मैं चाहूँ। So might I standing on the pleasant lay, pleasant lay means the green field, the greenery, the meadows of the greenery, वहाँ पर वो खड़ा होना चाहता है। Have glimpses that would make me less forlorn, और have glimpses, और उनको glimpses means आँखों के perception से उनको देखना चाहता है। That would make me less forlorn means alone, abandoned, मुझे प्रकृति अकेला नहीं छोड़ती, मैं प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ हूँ, प्रकृति पोइट के साथ और पोइट प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, और प्रोटियस इज़ वन ऑफ द सी गॉड, समुद्र का एक देवता है, उसको वो समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों के साथ उठते हुए देखना चाहता है। प्रोटियस को, जो समुद्र का देवता, ग्रीक टाइम में समुद्र का देवता माना जाता था। और हेयर ओल्ड ट्रिटन ब्लो हिज विद हॉर्न, और विद हॉर्न मीन्स कॉन्च मीन्स शंख जो बजाता था ट्रिटन, ये भी एक समुद्र का देवता है। उस समुद्र के देवता के उस कॉन्च की आवाज़ वो सुनना चाहता है, यानी वो किसकी आवाज़ सुनना चाहता है? प्रकृति की आवाज़ सुनना चाहता है। इस पोएम के माध्यम से पोइट वर्ड्सवर्थ ने ये बताया है कि किस तरह से हमें मटेरियलिस्टिक लाइफ से दूर रहते हुए किस तरह से प्रकृति से जुड़ना चाहिए, क्योंकि प्रकृति और व्यक्ति दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। भले ही वो धार्मिक पुस्तकें हों, भले ही वो पोइटिक एक्सप्रेशन हो, नेचर के साथ, और रोमांटिक पोइट्स ने बात कही, और आज ये बात बिल्कुल यूनिवर्सलाइज्ड मानी जा सकती है कि आज भी हमें नेचर के साथ जुड़ना चाहिए,
और नेचर से ही व्यक्ति है और व्यक्ति से ही नेचर है। व्यक्ति नेचर पे डोमिनेंट नहीं है, जबकि ये दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री पोल्स हैं। इसको साइंटिफिक आधार पर भी और इसको सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट के रूप में, एक लिटरेरी रूप में और एक कॉमन मैन के रूप में हम वर्ड्सवर्थ के इन विचारों को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। इसमें जो भी टेक्निकल क्रिटिकल चीज़ें आई होगी, इस पे हम नेक्स्ट क्लास में और डिस्कशन करेंगे। और अभी आप बच्चों इस पोएम को बहुत बेहतर ढंग से पढ़ें और इसकी तैयारी करें। थैंक यू, सॉरी सो मच।